ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। Jai Janendra, and welcome to all of you back to our Swadhyay after a gap of about 1 month, 2 weeks of Parva, and prior to that 2 weeks we could not conduct the Swadhyay because of my traveling. So we have had a little bit of a gap here for about a month's time. I hope everybody remembers the Granth that we are doing Swadhyay of, right? And where we were last time. We will do a quick revision of that anyway because it's been a while. But before I do that, let us just I want to open the floor to everyone, whoever wants to say anything, share anything in regards to the recent celebration of the 18 days of Paryushan Parv. How was your experience? How was the Parv done in the Jain Center? The lecture series, and any experiences you had. How was it for you personally, and any learnings, any important lessons and learnings you have taken away from these 18 days. Let's talk about that for a few minutes, right? And then we will get into the Swadhyay. Yeah, so with that, floor is open. If anybody wants to talk, they can. I think you can unmute yourself. I can say a few things. Uttam Kshama Mitsami from everyone. We have 18 days of very actively participated by our members of Paryushan Parva. So 8 days of Paryushan Parva and 10 days of Das Lakshana Parva. So 18 days we have a morning puja and Swadhyay and Swami Vasalya, and every day more than 50 people participate, and on weekend about 200 plus people participated, and then we have a Dikasanas by 30 plus people every day weekdays, and about more than 60 people on weekends. We had great scholars, Dr. Sallaben, and we have Dr. Abhijit Dagdaji for Das Lakshana. So every day morning and evening we had a pravachan on Zoom. So it was great aradhana. Not many Jain Center do like this. So we are very proud of our Jain Center and very great foundation. And the dharmas of Jain dharmas and lectures were very powerful, and particularly our daily Swadhyay is very important to do that, and daily puja and coming to the temple.
exercise very much, and also for the kids, they should participate more and all that. So, Good. quite, yeah. 2 Vedant we did also more than 150 people. 100 thalis, puja thalis. 100. Very good. 50 100. thalis. Very good. Very 50 good. thalis. So all right, so I will just, okay, thank you. Yeah, that's very good. Yeah. Others, whoever wants to say anything, the floor is open. It's yours. You can unmute yourself and say. So more importantly, I think on the weekends at least, more youth participated. So that was a very good thing. That's And, wonderful. I think temple also, from a donation perspective, very good numbers from both the parts. So there's bhakti also and there's bhav also, significant bhav. That's good. Good. Good to hear all this. Very nice. Dr. Saab, any? और कोई कुछ कहना चाहेंगे? किसी को कुछ बोलना है? बोलिए. आपके जो भी भाव हैं, जो भी. Manushi, how about Miss Manushi, Ben? Manushi, any? Also, we have passed about 500,000 innovation program, heating system and roof. So we had a big meeting, our general meeting, and then we passed that thing of expenses of 500,000 for innovation of our temple. So it was a big thing. Good. Good. Very good. 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 And any information on the tapasvis who did upvasa and ekasan? Did we have people doing that? Yeah, so we had, I'm told, like 20 plus attacks, so that is significant. 80 akashnas some days or on the last day, something. So really big numbers in anticipation also. Yeah. See the reason. Let me just give update. As usual, we had 116 upvas, 2 people at 11, Arey wah, very 6 good. to 8 at night, total 13. Tapasya. Lots and lots of ekashna. 4 years back, we look at 20 people. Right now, we daily 40. Yeah. And weekend 80 people. So many children take part. So I think the participation is increasing. Locals dharma bhavna be increasing, that they want to try and do something. So that is a very good positive. Paryushan weekend, we had 350 people for lunch, which is like unheard of it. We have never seen that kind of number before. So that's a good one. As usual, we did the Snapper Puja in the morning, the lecture. It is there. In the evening, people cannot come to the temple, so we can end up in the Zoom. Zoom, yeah. We are good tapasyas. Yeah. Good, very good. Glad to hear that. Shamavani also 300 plus people. Anumodna That is our to That's a big number too. Yeah. Anumodna to all the tapasvis. It's wonderful. Whatever you could do in 10 days, whatever we cannot do in a year, people try to do it in 8 days and try to do pratikraman. Pratikraman is very important as part of this process because self purification only comes from doing pratikraman and alochana, and it is emphasized in both sects, by the way. Shvetambara Amnaya also and Digambara Amnaya also, both of them place a very important significance on doing pratikraman. And this is called a Samvatsari Pratikraman. There are different types of pratikramans that are described in both Amnaya. And one of the ones, the last ones, it is called Samvatsari, meaning it is the annual pratikraman. So, the self-purification that you do, right, it is, the reason we are talking about this is, unless we admit our mistakes, there is no way for us to move forward, what our mistakes are and how to purify ourselves and correct our misdeeds, right? So, alochana and pratikraman holds significant importance, a lot of importance in the annals of Jain philosophy. And Munis, right, those who have taken the path of Diksha, Munis have to do this pratikraman every single day, right? I mean, it is part of their what is called as Chha Avashyak. It's called Shad Avashyak.
And as part of the Shad Avashyak, Munis have to do Pratikraman every single day. Think about it, right? Muni's life is far, far, far different than our life, what we lead. And we end up making lots of Jeev Hinsa and lot of errors and lot of faults and infirmities because we conduct our life as a householder. But Muni's life is so different, right? And it is not nearly to the degree of the kind of things that we undertake in our life. But yet, Pratikraman has been prescribed to them. Alochana Pratikraman has been prescribed to them for every single day. Even then, they are sick, they have to do it. So think about it, what they must be doing Pratikraman of when they have given up all worldly affairs. They have given up everything. What are they atoning for? Right? So it's very important. And the other thing we talk about these things, Dashlakshan and Paryushan, is because it coincides with our what is called as Chaturmas, Chaumasa, right? All these things happen in Chaumasa. अभी वहाँ पे भारत के अंदर चौमासा सब करते हैं क्योंकि मुनि भगवंत वगैरह यहाँ सब हैं, तो यहाँ वो सब प्रोग्राम वगैरह होते हैं, लेकिन बॉस्टन में वो सब मतलब बाहर के देशों में ये सब नहीं होता है. तो क्या कर सकते हैं भाई, 18 दिन का पर्व रख लो और 18 दिन के पर्व में आप जितनी हो सके उतनी आराधना कर लो, बहुत उत्तम बात है. लेकिन जो आराधना का जो टाइम रहता है वो 4 महीने का है यहाँ पे भारत में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े साधु मुनिराज सब, आरिका माताएं सब 4 महीने के लिए रुक जाती है और बहुत बड़े साधना का ये साधन बन जाता है 4 महीना. और उसके लिए ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, सोचने का रुख बदल जाता है. एंड इट समटाइम्स इट कैन ब्रिंग अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल. So Chaturmas holds a lot of significant importance because tremendous number of people, lots of people have been benefited, and it has had such a significant impact in their lives during these 4 months that it has taken a complete 360 degrees turn, and what they were thinking about life and what they thought it is and what they learned from acharyas and the gurus. And they have ended up making very significant different life choices and initiating themselves in the path of Sanyam also. So it is a wonderful time. It's a wonderful thing, and it comes every year. That's the thing, right? That's the beauty of it. So it's a good thing. अपने हिसाब से जितनी बन सकती हैं, जितना कर सकते हैं उतना अपन करें, अच्छी बात है ना. न करने से कुछ भी, न करने से कुछ करना अच्छा ही होता है. और जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से हम जहाँ रहते हैं, जितना वहाँ बन सके, जितना कर सके उतना बहुत बढ़िया है, बहुत भला है, आत्मा का ही भला है, आत्मा का ही कल्याण है इसमें, है ना. तो चलिए, बहुत अच्छा है. और किसी को कुछ बोलना है? वन लास्ट चांस, अदरवाइज वी विल गेट टू द स्वाध्याय नाउ. ठीक है, चलिए, है ना. Now we will turn to our Grantha Shri Swarup Sambodhan by Acharya Aklank Swami. So before this whole thing started about a month ago, we had completed verse number 8. 8 श्लोक तक अपना स्वाध्याय हो चुका था, जिसके अंदर आचार्य देव ने यहाँ पे आत्मा के अनेकांतात्मक धर्म को, अर्थात अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को प्रकट किया हुआ है सभी श्लोकों के माध्यम से, है ना. और इसके अंदर आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वभाव दशा, विभाव दशा तथा अनेक प्रकार के जो नय हैं, उन नयों का आधार लेके यहाँ पे आचार्य देव ने, अकलंक स्वामी ने प्रस्तुतिकरण किया हुआ था. जैसे देखते हैं अपन, देखिए श्लोक 6 के भीतर क्या कहा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं आत्मा का अनेकांत रूप है. द सोल इज अ यूनिटरी एंटिटी एज वेल एज इट इज ऑफ द मैनिफोल्ड एंटिटी टाइप. मतलब क्या कि आत्मा का जो स्वरूप है वो एक भी है और अनेक रूप भी है ना. और उसके साथ पहले कहा आत्मा ग्राह्य भी है, आत्मा अग्राह्य भी है, आत्मा मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है ना. फिर उसके पश्चात में कहा आत्मा जो है वह वक्तव्य का कारण बन सकता है तथा अवक्तव्य भी हो सकता है. मीनिंग द सोल एंटिटी इज बोथ डिस्क्राइबेबल, दैट इज i.e. एक्सप्रेसिबल,
and also non-expressible at the same time. आत्मा का जो अवक्तव्यपना है वह अवक्तव्यपना भी सिद्ध होता है और वक्तव्यपना भी सिद्ध होता है। ये भी श्लोक 7 के अंदर अपन ने देखा हुआ था। फिर बाद में श्लोक 8 के भीतर आचार्य देव ने कहा कि सोल एंटिटी इज बोथ विथ द शेप एंड विदाउट द शेप। देखो, आत्मा को हम अमूर्तिक मानते हैं, है ना। अमूर्तिक मानने के कारण इसको शेपलेस फॉर्मलेस बोलते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ पे किस अपेक्षा से, देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस हियर, ऑल्दो दोज हु आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मे फील दैट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, but these are not contradictory principles. This is not a contradictory ideology. On the contrary, it's a supplementary and it's complementary from the perspective from which it is communicated. इसीलिए अनेकांत धर्म बनता है। और उस अपेक्षा से आत्मा का क्या कहा स्वरूप 8वें श्लोक के भीतर कि आत्मा सतरूप भी है और आत्मा असत रूप भी है, अस्ति भी है, नास्ति भी है। स्व अपेक्षा से अस्ति रूप है, पर अपेक्षा से आत्म तत्व नास्ति रूप है। दोनों ही कथन इसके भीतर आए हुए हैं। फिर इसी अपेक्षा से शुद्ध स्वरूप की जब हम अपेक्षा करते हैं तो आत्मा कैसी है, तो शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से कहते हैं तो अमूर्तिक है। और लेकिन बद्धावस्था के भीतर जब अपन बात करते हैं तो बद्धावस्था के भीतर कथनचित मूर्तिकपना इसे सिद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि संसार अवस्था के भीतर आत्मा जो है वह शरीर के बिना रह नहीं सकती। सूक्ष्म शरीर, आपको औदारिक शरीर भी अगर नहीं दिखेगा, आप बोलोगे जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है व्यक्ति का? भाई जब आत्मा चली जाती है, मतलब देखो आत्मा का तो एक दृष्टि से मरण नहीं होता है, एक दृष्टि से होता है, सब में अनेकांत है ना। तो मरता कौन है? तो कहते हैं शरीर मरता है, भाई आत्मा नहीं मरता। तो भाई फिर जो अगर ये बोलते हैं कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती है, तो भाई प्रश्न फिर पुद्गल जीता है क्या, ये प्रश्न आएगा। आपने कहा शरीर मरता है तो इसको मतलब आपने ये स्वीकार किया कि पहले जो जी रहा था वो शरीर है कि आत्मा है, क्या है ना। तो देखो देह परिवर्तन हो जाता है, तो यही ये बात है कि 84 लाख योनियों में घूमते हुए जब आत्मा की मृत्यु भी हो जाती है, जब देह परिवर्तन हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है। तो शरीर छूट जाने के बाद आत्मा फ्री हो गई क्या? कैसे हो गई? हो ही नहीं सकती। विग्रह गति में भी जब आत्मा जाती है तो विग्रह गति में कार्बन रूप सूक्ष्म शरीर उसके साथ पाया जाता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, है ना। 5 प्रकार के शरीर है ना। तो 5 प्रकारों के शरीरों में जो अति सूक्ष्म शरीर जो है, जिसको हम कहते हैं कार्बन पुद्गला, कार्बन वर्गणाएं, कार्बन शरीर जिसको हमने कहा हुआ है, तो भैया कार्बन शरीर से तो आत्मा अलग हो ही नहीं सकती। भाई वो दिख नहीं रहा है वो बात अलग है, हमें उसका औदारिक रूप दिख नहीं रहा है वो बात अलग है। लेकिन केवल ज्ञान में आई हुई जो वस्तु स्वरूप की जो व्यवस्था है वो क्या है कि सूक्ष्म कार्बन पुद्गल वर्गणाएं जो कार्बन शरीर रूप होती हैं, उन कार्बन शरीर रूप क्या विग्रह गति में भी आत्मा के साथ संबंध पाया जाता है। संसार अवस्था इसीलिए बद्धावस्था कही हुई है। और ये बद्ध अवस्था में इसीलिए जब तक मोक्ष नहीं हो, जब तक इस जीव ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया हो, तब तक शरीर बना ही रहता है किसी न किसी फॉर्म में। इसीलिए जो सिद्ध भगवंतों की स्तुति जो की हुई है हमारे आचार्य देवों ने, वो क्या की है? तो कहते हैं ज्ञान मूर्ति, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। अशरीरी बोलते हैं उनको, उनका शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब। तो जब तक वो अवस्था में प्राप्त नहीं होती है, तब तक जिस अवस्था में अपन हैं, यानी संसार अवस्था के भीतर पंच परावर्तन रूप सुख दुख को भोगते हुए ये जीव जब चल रहा है, तब उसके साथ शरीर का विलोप कभी नहीं होता। और ऐसा होने के कारण वहां पे बद्धत्व के लिए, बद्धत्व के कारण से वहां कहा जाएगा कि ये कथनचित क्या है, मूर्तिक भी है।
तो देखो ये सब जो तत्व प्रणालियां जो है ये है अनेकांतात्मक, स्याद्वाद और न्याय दृष्टि से परिपूर्ण है, तथा वस्तु तत्व जो जिनागम के भीतर आया हुआ है उसके पूरक हैं. Meaning, it articulates the nature of reality as found in the Jain canonical principles and literature, which is different than what is found in other schools of thoughts. देखो जैन धर्म जो है ना, भारतीय संस्कृति है ना, ये आत्मवादी संस्कृति है. Meaning, they all believe in the existence of the soul. They all believe in moksha. But while believing it also, there are differing conceptions relating to the true nature of reality. So here, what we are saying is, in the state of samsara, when this soul is transmigrating in different gatis and taking different forms, it is not going to be without a body. उसको देव बनो, नारकी बनो, तिर्यंच बनो, मनुष्य बनो स्थूल दृष्टिकोण से, या फिर एकेंद्रिय की 5 जो इकाइयां हैं, एकेंद्रिय कायिक में बनो, वनस्पति काय में जाओ, जल कायिक में जाओ, वायु कायिक में जाओ, किसी में भी जाओ, नित्य निगोध में के भीतर भी जाओ, तो भी वहीं पे यही व्यवस्था बनती है ना. तो इस प्रकार से देखिए ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को प्रकट करने वाला ये अध्यात्म का ग्रंथ है, अध्यात्म और न्याय का. तो इसके भीतर आत्मा की ऐसी परिभाषाएं बताई हुई हैं. अब इसकी अपन समापन के ओर हैं. वी आर कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन ऑफ द multifaceted characteristics of the soul. We are coming towards an end of it now. Okay? Because in the next chapter a different discussion will take place. So as a concluding remark, because we talked about contradictions yet no contradictions. Contradictions may appear to some who do not have a way of thinking from the multiplicity of views standpoint. But those who have the multiplicity of standpoint views, they will recognize that this is all complementary. Right? This is all jives together and this all makes sense. तो उसी की श्रृंखला के भीतर यहाँ पे अभी अंतिम काव्य जो है वह प्रस्तुत किया जा रहा है ना. श्लोक नंबर 9. तो देखिए अभी एक काम करता हूँ, आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू. लेट मी डू दैट, हैंग ऑन. Can you see the screen? Hello? Oh. Cut I did. Now we can share. I tried to share. Okay, I tried to share my screen. You should be able to. You lost your connection and connected back. It knocked me off. Yeah. I think you're back. You should be able to share. Okay, it says screen. Okay, this message did not come before. Now it has.
June. So this should work now. Yeah. Rest of the people, please be on mute, okay? And only when you have to speak, you can turn on, okay? Okay, आपको दिख रहा है अभी? हाँ जी, आ गए. Okay, okay. All right. So now we come to this shloka of the today, which is the 9th shlok, 9th verse, right? And this is, as I said, this is the concluding part of the overall discussion we have had up until this point. तो देखिए यहाँ आचार्य देव अब क्या कह रहे हैं कि आत्मा के भीतर जो अनेक गुणधर्म पाए जाते हैं, अर्थात धर्म पाए जाते हैं, वे कैसे होते हैं? अर्थात आत्मा के भीतर अनेक धर्मों का सद्भाव कैसे होता है, इसका उत्तर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य कलंक स्वामी. तो क्या कहते हैं देखिए, इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ यतो फलम आत्मा स्वीकुरुते तत्कारणैः स्वयमेव तु. वापस एक बार पढ़ता हूं. इत्यादनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयोः फलम आत्मा स्वीकुरुते तत्कारणैः स्वयमेव तु. यहाँ पे प्रश्न आया कि आज तक जो है आत्मा के अनेकांतात्मक गुणधर्म और धर्म के बारे में बताया गया. तो प्रश्न है कि आत्मा के भीतर ऐसे गुणधर्मों को कैसे पाया जाता है. तो आचार्य देव कहते हैं इत्यादनेक, इस प्रकार से, मतलब पूर्व से कहे गए हुए, फ्रॉम श्लोक 1 to श्लोक 8, whatever all the properties and the characteristics of the soul we have talked about so far, in this way, इस प्रकार से क्या कहते हैं, अनेक धर्मत्वम विद्यति स आत्मा, अर्थात आत्मा के भीतर ऐसे अनेक गुणधर्म, अनेक धर्म, यहाँ धर्मत्वम शब्द आया है. धर्मत्वम का अर्थ जैन धर्म नहीं लेना, धर्म का अर्थ यहाँ गुणधर्म बता रहे हैं, अर्थात क्वालिटी बता रहे हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, है ना, अनेक धर्मात्मक पना बता रहे हैं ना. तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार से अनेक धर्म, अर्थात अभी धर्म जो है, अभी अपन बात करते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे. इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो धर्म है, अनेक धर्मत्वम सविद्यते आत्मा, और उसका फल क्या है, यतो तयो बंध मोक्षो फलम, उसका फल ये है, इस अनेक प्रकार के धर्म को प्राप्त होने का फल आत्मा क्या पाती है. तो कहते हैं बंध मोक्ष हो, उसको बंध को भी वो प्राप्त होता है तथा वह मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है. तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं आत्मा स्वीकुरुते, आत्मा स्वयं ही उसका स्वीकार करता है. किसका? कहते हैं फल का. कौन से फल का? बंध रूप फल और मोक्ष रूप फल, ये दोनों ही फल है वह आत्मा ही स्वीकार करती है. तत्कारणे स्वयमेव तु, स्वयं ही, अपने आप ही, उन कारणों के मिलने पर. कौन कारणों के मिलने पर? अपन बात करेंगे. इन कारणों के मिलने पर यहां आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा स्वयं ही फल को प्राप्त हो जाती है, अर्थात बंध रूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है तथा मोक्ष रूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है. तो मतलब यहां कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य देव? तो देखो, जो सिद्धांतिक प्ररूपणा जो है, वस्तु तत्व की जो सिद्धांतिक प्ररूपणा है, वह सिद्धांतिक प्ररूपणा ये है कि आत्मा जो है, वह आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और उनके कारण, अर्थात जिन कारणों से वो उत्पन्न होते हैं, तो उन कारणों के फल स्वरूप में आत्मा को बंध दशा प्राप्त हो जाती है और मोक्ष दशा प्राप्त हो जाती है, और इसको करने वाला और कोई नहीं है.
क्या कह रहे हैं आचार्य देव? बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। श्लोक छोटे छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत भरा हुआ है। आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा स्वीकुरुते, ये स्वयं ही करती है, दूसरा कोई कराता नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आचार्य देव इज स्टेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द सोल एंटिटी, and it is also stating that it is responsible for its own destiny through its own efforts. So whatever the cause and effect relationship that takes place, that is because of the self effort of the soul. कोई करा नहीं रहा है, मतलब यहां कोई विधाता नहीं है। मैंने क्या कहा पूर्व में कि यहां पे आत्मवादी धर्म जरूर है यहाँ पे, लेकिन आत्मवादी धर्मों के भीतर यह अवधारणा है कि कोई करता है, कोई कराता है, कोई बनाता है, कोई तोड़ता है, और भगवान को विधाता के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। तो हमारे जिनेंद्र देव जो हैं वस्तु स्वरूप का जब कथन करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ कोई विधाता नहीं है, आत्मा ही अपनी स्वयं विधाता है। मतलब आत्मा ही अपने स्वयं ही दुख को रचता है, आत्मा स्वयं ही अपने सुख को रचता है। कोई भगवान बैठ के वहां आपको सुख और दुख देने वाला नहीं है। ये फिलॉसफी जैनत्व की नहीं है, जैन धर्म की नहीं है, जिनेंद्र देव की नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी बात कह दी। आत्मा स्वीकुरुते शब्द तो छोटा लगता है, आत्मा स्वीकार करती है, आत्मा स्वीकुरुते स्वयमेव तू, स्वयं ही अपने आप ही। मतलब क्या? मतलब कोई करा नहीं रहा है इसको, वो फल जो प्रदान कर रहा है कोई विधाता आके बाहर से, देयर इज नो एक्सटर्नल एंटिटी आउटसाइड यू, दैट इज अ सुपर फॉर्म ऑफ अ गॉड दैट इज इंपोजिंग इट्स विशेस अपॉन यू टू से टेक दिस एंड टेक दैट। यानी विधाता रूप की जो कल्पना है भगवान की, वह विधाता रूप कल्पना यहां नहीं बनती है। तो इसीलिए आचार्य अकलंक स्वामी कह रहे हैं आत्मा स्वीकृत है, आत्मा स्वयं ही स्वीकार करती है उन कारणों को प्राप्त होने से, कोई कराता नहीं है। मतलब क्या? यहां पे कह रहे हैं पर द्रव्यों से आत्मा भिन्न होने के साथ साथ कैसी है? स्वतंत्र है। द सोल एंटिटी इज इंडिपेंडेंट, और वो स्वतंत्रता इसीलिए बनती है क्योंकि वह स्वयं ही अपने सुख का कारण है, वह स्वयं ही अपने दुख का कारण है। और इसी कारण से आत्मा के भीतर ये दोनों ही चीजें घटित होती हैं। तो इससे हम क्या समझें? इत्यादि अनेक धर्मत्वम, इस प्रकार से आत्मा के भीतर अनेक धर्म, परस्पर विरोधी धर्म घटित होते हैं। अच्छा, परस्पर विरोधी धर्म कैसे घटित होते हैं भाई? तो देखो, तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय के अंदर पहला सूत्र क्या कहा? तत्वार्थ सूत्र जी के अंदर दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपक्षमिको चायिको भावो मिश्रश्च जीवश्च सत्वत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। सारा उत्तर आ गया इसमें। बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य उमा स्वामी ने। क्या कह रहे हैं वहां पे? वहां पे कह रहे हैं आत्मा के औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, उसके बाद औदयिक भाव, मिश्र परिणाम और पारिणामिक भाव, आत्मा के स्वतत्व कह दिए वहां पे। ध्यान देना शब्दों के ऊपर, बहुत वजन है इसमें, नहीं तो फिर तत्व को समझने में चूक कर जाओगे। जब आत्मा विभाव परिणति में अर्थात बद्ध अवस्था में, संसार अवस्था में रहती है, इसको अंडरलाइन करके रखना जो भी नोट्स ले रहे हैं वो, क्या कि आत्मा जब भी संसार अवस्था के भीतर चतुर्गति रूप परिभ्रमण जब करती है, उसमें जब रहती है, तो देखना आत्मा के दोनों ही भाव बनते हैं, दोनों ही धर्म बनते हैं। कौन से धर्म? विभाव धर्म और स्वभाव धर्म। आपने अभी क्या सीखा? 10 लक्षण के भीतर आत्मा के गुणों के बारे में आपने क्या सुना? आत्मा कैसी है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जर, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याति धर्म्यम। पढ़ा ना आपने ये सब? चलो ठीक है।
तो उत्तम क्षमा आत्मा के भीतर कब उत्पन्न होगी? जब क्रोध भाव का परिहार होगा। क्रोध का जब अभाव होगा तब उत्तम क्षमा उत्पन्न होगी। उसके बाद मान कषाय का जब अभाव होगा तो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। जब मायाचारी रूप विभाव परिणाम अभाव होंगे तभी आर्जव धर्म की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जब लोभ रूप परिणति का अभाव होगा तभी शौच, उत्तम शुचिता, शौच धर्म प्रकट होगा। तो आपसे सीधा सवाल करते हैं कि ये सब कहां चल रहा है? Where does this all taking place? It is taking place in a thing we call the soul entity. आई बात समझ में? अगर आप ये नहीं मानोगे कि आत्मा में विभाव भाव है तो भाई फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं क्रोध उत्पन्न कहां से हुआ? मान कषाय कहां से उत्पन्न हुई? मायाचारी के परिणाम कैसे आए? लोभ कषाय कहां से उत्पन्न हो गई? परिग्रह का भाव क्यों पल रहा है? काम, क्रोध, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा कहां पल रहे हैं? कहां पल रहे हैं? कौन बताएगा? देखो ये बहुत फंडामेंटल चीज है, क्योंकि मात्र अपन ने शुद्धत्व का ही समझ लिया और अशुद्धत्व को छोड़ दिया तो अशुद्धत्व की पहचान आपकी नहीं होगी। और इसीलिए आचार्य देव यहां कह रहे हैं तत्कारणे बंध मोक्षो। जब यह जीव, अब दशलक्षण का ही अपन उदाहरण लेते हैं क्योंकि अभी आप दशलक्षण पर्व करके आए हैं। दशलक्षण पर्व का ही अपन उदाहरण लेते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? Yes, we can hear you. ओके। अभी दशलक्षण पर्व के भीतर भी हम सुन के आए हैं, प्रवचन आदि सुना हुआ है हमने। क्या सुना हुआ है? कि क्रोध की उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य इत्यादि गुण आत्मा के हैं, है ना? तो आत्मा के ये गुण मतलब क्या है? ये आत्मा का स्वभाव भाव है। मतलब आत्मा के दो भाव हो गए ना। और इसी बात को यहां समझा रहे हैं, इत्यादि अनेक धर्मत्वम बंध मोक्षो। तो जब जब आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणत होगी तो उसको बंध का फल मिलेगा। मोक्ष दशा नहीं मिलने वाली है, उसको संसार दशा में बंध का फल मिलने वाला है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणत होने से। और इसी के विरुद्ध पक्ष, इसको कहते हैं विभाव भाव। मतलब अर्थ क्या हुआ? आत्मा स्वीकुरुते ततत् कारणे। इसके कारण क्या है? तो कहते हैं विभाव भाव। कौन से विभाव भाव है? क्रोध, मान, माया, लोभ। और मिथ्या तो सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अब दशलक्षण का विषय है ना, तो अभी सुन के आए ना, इसलिए इसको लेते हैं समझने के लिए। मिथ्या तो सहित ये सब जो जीव की अवस्थाएं बनती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे क्या मिलेगा? ततत् कारणे बंध अस्ति। इस कारणों से आत्मा स्वयं ही बंध को स्वीकारता है। और ये आत्मा का विभाव भाव है, ये भी आत्मा का ही भाव है, आत्मा से अन्य नहीं है प्रमाण दृष्टिकोण से। और इसी के विरुद्ध प्रतिपक्ष स्वभाव भाव की जब बात करेंगे तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तय्यम, त्याग, अकिंचन रूप जब परिणत करेगा तो वह क्या करेगा? वह मोक्ष रूप अवस्था को पाएगा, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ करेगा वो। और उसका भी कारण क्या है? ततत् कारण है। उसका कारण है उसका स्वभाव भाव। मतलब क्या घट रहा है? आत्मा के भीतर दोनों ही चीजें घटित हो रही हैं। स्वभाव भी घट रहा है, विभाव भी घट रहा है। तो टेल मी, इज दिस नॉट अपोजिंग एट्रीब्यूट्स इन अ सोल? हेलो, आर दीज नॉट द अपोजिंग एट्रीब्यूट्स इन द सोल सबसिस्टिंग एट द सेम टाइम? They are. Yes. They are. They are. That is why we are encouraged
टू कॉन्कर आवर विभाव भाव। ये अपने जो शास्त्र बने हैं, जो गुरुओं की अपने को वाणी मिलती है, जिन वाणी के इतने 4-4 अनुयोग बने हुए हैं, इन सभी का मुख्य वजह कारण क्या है कि जीव अपने विभाव भाव को तजें और स्वभाव भाव में परिणत करें। और चूंकि मिथ्यात्व अवस्था के भीतर रहने के कारण जीव को कभी यह पता ही नहीं चला कि मेरा स्वभाव क्रोध रूप है नहीं, मैं तो कैसा हूं, क्षमा को धारण करने वाला हूं, मार्दव धर्म को धारण करने वाला हूं, आर्जव को धारण करने वाला हूं, शौच धर्म को धारण करने वाला हूं। इसकी समझ के लिए यह कहा जाता है कि भाई ये तेरा सच्चा स्वभाव है। लेकिन ये कहने से ये मत मान लेना कि दूसरा स्वभाव तुम्हारा नहीं है। अंडरलाइन करो इस सेंटेंस को, दूसरा स्वभाव तुम्हारा नहीं है ऐसा मत मानो। वो भी तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन वो कैसा है, वो स्वभाव भाव नहीं है। अभी थोड़ा डेप्थ में चले गए हैं अपन। ये विभाव भाव है, लेकिन विभाव भाव आत्मा में ही घटित होते हैं। अगर आत्मा में घटित नहीं हो गए तो फिर बंध मोक्ष का फल किसको प्राप्त हो रहा है? तो देखो, इसी प्रकार से अपन ने यही सिद्ध कर लिया कि बंध और मोक्ष के कारण जो हैं, अर्थात जो विभाव भाव है और स्वभाव भाव है, वे आत्मा के भीतर ही घटित होते हैं। बंध रूप अवस्था का कारण क्या है? मिथ्यात्व सहित राग द्वेष रूप परिणाम। और मोक्ष का कारण क्या है? रत्नत्रय रूप परिणमन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जीव का परिणमन करना। सो मोक्ष का कारण कहा? ये दोनों ही कारण कहां घटित हो रहे हैं? आत्मा के भीतर जब विभाव परिणाम चलते हैं तो बंध दशा घटित हो रही है। आत्मा के भीतर जब स्वभाव परिणाम चलते हैं तो रत्नत्रय को जब प्राप्त होता है आत्मा, तो मोक्ष का पुरुषार्थ चल रहा है। दोनों ही चीजें आत्मा के भीतर ही घटित हो रही है। इसीलिए आत्मा दोष रूप तथा गुण रूप दोनों ही प्रवर्तन करता है, ध्यान रखना। और इसी कारण से अब वापस अपन तत्वार्थ सूत्र की शरण में जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र को जब आप बारीकी से पढ़ोगे, उनकी टीकाओं का आधार लेके पढ़ोगे, तो भाई जैन धर्म का दूसरा शास्त्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त रूप से, मतलब इंटरेस्ट है तो बहुत पढ़ो, लेकिन पर्याप्त रूप से मोक्ष के लिए जो अपने को भाव सामग्री, जो ज्ञान चाहिए, वो सब तत्वार्थ सूत्र में आपको मिल जाएगा। तो तत्वार्थ सूत्र के भीतर उसकी शरण में जाके अब हम समझते हैं कि इसीलिए आचार्य देव ने वहां इन सारे भावों को औपशमिकौ क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च शिवश्च स्वतत्व कहा। उसको स्वतत्व इसीलिए कहा है क्योंकि ये सारे परिणाम आत्म तत्व के भीतर घटित होते हैं। एक विभाव रूप घटता है और एक स्वभाव रूप घटता है। तो सारी कसरत किसके लिए है आगम की? ये चारों अनुयोगों की कसरत किसके लिए है? मात्र इसीलिए है, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग, इफ यू कम डाउन टू द बेसिक बेयर बॉटम लेवल्स, कि आपको विभाव परिणति तजना है। इस जीव को विभाव परिणति से तजना है और स्वभाव परिणति को प्राप्त करना है। यही आगम का सार है। और इसी के कारण आत्मा में गुण भी घटित होते हैं जो दश लक्षण रूप दश धर्म है, और उनके प्रतिपक्षी जो विभाव स्वभाव हैं वे भी उनमें घटित होते हैं जो दोष रूप होते हैं। तो इन दोषों का और गुणों का, दोनों का समूह जो है वह आत्म तत्व के भीतर पाया जाता है। और इसीलिए आचार्य देव यहां कह रहे हैं भाई कि ऐसे कारण जब इस आत्मा को प्राप्त होते हैं तब वह आत्मा क्या करती है? स्वयमेव तु, स्वयं ही स्वीकुरुते, स्वीकार करती है। किसको? फलम, क्या फल? बंध मोक्षौ तयो। ऐसे कारणों को प्राप्त होने पर, मीनिंग देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कारण आत्मा अपने ही परिणामों के कारण स्वयं रूप से उसी परिणामों का आधार लेके उन फलों को स्वीकार करती है। एक फल संसार अवस्था है, दूसरा फल मोक्ष अवस्था है। तो जिन जिन को अपने जीवन के भीतर जो भी योग्य लगता है उस रूप परिणमन करना है।
आप विवाह रूप परिणमन करोगे, आपको बंध मिलेगा, आपको संसार दशा मिलेगी। और सच में अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा होकर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बाहर का नाटक है ये सब पूरा नाटक है, मात्र दुख को ही उत्पन्न करने वाला है, सही सुख का मार्ग ये नहीं है, जब ऐसा अंतरंग श्रद्धान जीव के भीतर उत्पन्न होता है कि मेरे लिए इष्ट क्या है, मेरे लिए अनिष्ट क्या है, मेरे लिए तजने योग्य क्या है, मेरे लिए स्वीकार करने योग्य क्या है, इसको आगम के भीतर विवेक कहा हुआ है। विवेक जो है वो बहुत अभ्यास करने से नहीं उत्पन्न होता है। विवेक, ध्यान रखना, मतलब बहुत बड़ा पंडित बन के विवेक उत्पन्न होता है, सो बात नहीं है। लेकिन जब हमारे परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है और उसके साथ में जो वस्तु तत्व के भीतर अपना जो श्रद्धान बढ़ता है, उस श्रद्धान से विवेक का उत्पन्न होता है। और ऐसा जब विवेक उत्पन्न होता है तब वह जीव फिर ऐसे कारणों को स्वीकार करता है जिससे बंध रूपी संसार का अभाव हो, अर्थात वो कम कम होते जाए। इस पंचम काल में पूर्ण तो अपन कर नहीं सकते क्योंकि पंचम काल में मोक्ष का अभाव है, लेकिन पंचम काल में अपन क्या कर सकते हैं, तो ऐसे साधनों को जुटा सकते हैं, ऐसे कारणों को जुटा सकते हैं जिनके कारण से हम अगले भव के भीतर रत्नत्रय की आराधना करके उस मार्ग को अपन सीधा बना सकते हैं। जैसे आप इंडिया से यहां आते हो, यहां से इंडिया में जाते हो, तो जब चलते हैं हम साथ में, तो क्या साथ में थोड़ी मिठाई, थोड़ा मेवा, थोड़ा खाने के लिए कुछ अपन रख के चलते हैं, क्योंकि अपन बाहर का कुछ खाते नहीं है ना। तो इसको पाथे कहा हुआ है आगम के भीतर। तो अभी ये पंचम काल का पाथे जो है वो हमें लेना है। अगर इसके बिना अपन चले गए तो भैया दुर्गति निश्चित है अपनी। तो पंचम काल के भीतर ये पुरुषार्थ हमें करना है, और वह पुरुषार्थ वे जीव कर सकते हैं जिनको अंतरंग से ये भाववासन हुआ है कि सच्चा सुख कहाँ है और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कौन से कारण, कौन से उपाय मुझे करने हैं। ऐसा जब विवेक उत्पन्न होता है, उस प्रकार से कारण कार्य भाव की अपेक्षा से फिर वह ऐसे कारणों को स्वीकार करता है जिससे विभाव भाव घटे। पूर्ण तो नहीं जाने वाला है इस पर्याय में, पंचम काल में, लेकिन घटना पॉसिबल है, घटा सकते हैं। अनंतानुबंधी रूप क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोह का क्षयोपशम तो अभी भी कर सकते हैं। क्षय नहीं होता लेकिन क्षयोपशम हो सकता है, और वो बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। यही फल आपको एक दिन सिद्धालय में पहुंचाने वाला है, इतना बड़ा फल है ये। हमारे सभी आचार्यों ने ये कहा हुआ है। तो ये पुरुषार्थ अभी भी अपन कर सकते हैं। तो ऐसे विभाव भावों को तज के जो बंध के कारण हैं उनको कम करके रत्नत्रय की आराधना करके हम मोक्ष रूपी अवस्था को प्राप्त होने के लिए उन कारणों को अपन जुटा सकते हैं, है ना। इसी को दूसरी भाषा में समझो तो आचार्य, अभी अपन ने तत्वार सूत्र जी का शरण ली, फिर अपन ये स्वरूप संबोधन ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब उसी के साथ अपन और एक बड़े अध्यात्म ग्रंथ की शरण में चले जाते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत समय सारजी ग्रंथ, है ना। तो समय सारजी ग्रंथ के भीतर जो पुण्य पापाधिकार हैं है ना, जो अधिकार बनाए हैं उसके, तो पुण्य पापाधिकार अधिकार के भीतर जो गाथाएं वहां पे आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी हुई है, उनके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो टीकाएं बनाई हैं, बहुत प्रबुद्ध टीकाएं हैं। तो देखो, इस संबंध से रिलेटेड श्लोक नंबर यानी गाथा नंबर 151, 52 और 53, 151, 52, 53, इन सभी गाथाओं के भीतर आचार्य देव ने, क्योंकि अभी बंध और मोक्ष की बात चल रही है ना अपनी, तो देखो समयसार जी के भीतर क्या प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। समयसार जी के भीतर गाथा 151, 152, 153, इनकी टीकाओं के भीतर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ रचा, जिसकी अपन पूर्व में वाचना स्वाध्याय करके आए हैं, वे क्या कहते हैं
वे कहते हैं बंध का कारण, कर्म बंध का मूल कारण, अर्थात संसार का मूल कारण जीव का अज्ञान भाव है। क्या भाव है? अज्ञान भाव है। और फिर साथ में कहा मोक्ष का मूल कारण क्या है? तो कहा मोक्ष का मूल कारण जीव का ज्ञान भाव है। ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम, ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम, ज्ञानमेव मोक्ष हेतु, अज्ञानमेव बंध हेतु। 153 नंबर की जो कारिका है उसकी टीका में यह कहा हुआ है। मतलब क्या कह रहे हैं? यहां बंध का कारण अज्ञान भाव बता रहे हैं। अज्ञान भाव मतलब क्या? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यानी मिथ्यात्व से सहित पनपने वाला जो ज्ञान है वह अज्ञान है। और ऐसा अज्ञान भाव जो है वह बंध का कारण समयसार जी के भीतर प्रस्तुत किया हुआ है। और इसके प्रतिपक्षी रूप में मोक्ष का कारण जो प्रस्तुत किया है वो क्या किया है? ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अब ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन से सहित होने वाला सम्यक ज्ञान, और वह ज्ञान वहां मोक्ष का कारण बताया है ना। तो अब आपसे प्रश्न पूछते हैं कि ये अज्ञान भाव और ये ज्ञान भाव ये कहां घटित हो रहा है? कहां घटित हो रहा है? हाँ, आत्मा में। आत्मा ही घटित हो रहा है ना। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा में विभाव परिणति भी चलती है और स्वभाव परिणति भी चलती है। ये समय सार से भी सिद्ध हो गया। सब ग्रंथ वही बात कर रहे हैं। सबकी भाषा अलग अलग है, थोड़ी खोज करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी लिंक लगानी पड़ती है, लेकिन सब आचार्य देवों का सबका मूल उद्देश्य तो वही है। सब लोग वही बात कर रहे हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान भाव विभाव भाव है। विभाव भाव अर्थात बंध का कारण है, तो अज्ञान भाव बंध का कारण, विभाव भाव बंध का कारण। और स्वभाव भाव अर्थात ज्ञान जो है वह क्या है? मोक्ष का कारण है, और वह स्वभाव भाव है आत्मा का। मतलब जो यहां पे स्वरूप संबोधन के भीतर आचार्य देव ने कहा वही बात की निष्पत्ति समयसार जी के भीतर हो रही है। और ऐसे धर्म जो हैं वह धर्म आत्म तत्व के भीतर ही पाए जा रहे हैं। जब यह आत्म तत्व अज्ञान रूप परिणत होगा तो उसका फल उसे बंध रूप मिलेगा, संसार मिलेगा। और जब यह आत्मा ऐसी पुरुषार्थ करेगा जिससे वह ज्ञान रूप परिणत होगा तो उसका फल उसको क्या है? मोक्ष रूप अवस्था की कभी न कभी प्राप्ति होगी, इस भाव में नहीं होगी। पंचम काल की अपेक्षा से कथन को मत स्वीकार करना, सर्वकाल अपेक्षा से स्वीकार करना इस कथन को, क्योंकि कथन की भी अनेक पद्धतियां होती हैं। सर्वकाल अपेक्षा मतलब कभी न कभी भविष्य में ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होगी सम्यक्त्व के कारण, जिससे हम मोक्ष पुरुषार्थ करने में सक्षम बन सकते हैं। राइट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस गति, राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस दुखमा काल, राइट, बट इन अदर वेज इट इज पॉसिबल। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने आज क्या कहा कि आचार्य देव ने उत्तर दिया कि आत्मा में अनेक धर्मों का सद्भाव भाई कैसे होता है? तो देखो इस प्रकार से होता है ना। तो इसकी अच्छे से अपनी आज निष्पत्ति हो गई। इसीलिए इससे अपने को प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा यह मिलती है कि जीवन के भीतर जितना हो सके, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है सब छोड़ो और मुनि बन जाओ। हेलो, आपको ये कोई उपदेश नहीं दे रहा है यहाँ पे, और उपदेश का मैं पात्र नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता ऐसा उपदेश। ऐसा उपदेश तो कोई मुनिराज ही दे सकते हैं जो रत्नत्रय के धारी हैं। तो आपको ये उपदेश, हमको आगम से यह प्राप्त नहीं हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मुनि बन जाओ। अगर वैसी योग्यता बनती है तो अच्छी बात है, अगर वैसी योग्यता नहीं भी बनती है तो इस संसार में रहते हुए अपने दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यापन करते हुए अपना स्व के प्रति क्या कर्तव्य बनता है कि अज्ञान भाव को मिटाओ, जितना हो सके उतना अज्ञान भाव को मिटाओ, और जितना हो सके उतना ज्ञान भाव में परिणमन करो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो जितना हो सके उतना विवाह भाव को तजो, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणति को जितना हो सके उतना तजो, और जितना हो सके उतना उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इन धर्मों की शरण में जाओ, क्योंकि ये धर्म आत्म तत्व के भीतर ही पाए जाते हैं और कहीं अन्य पाए नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा जो है, वह प्रेरणा हमें इस कारिका के माध्यम से प्राप्त होती है, जो आचार्य अकलंक देव स्वामी ने कही हुई है। और इससे और एक बहुत बड़ी बात निकलती है इसमें। क्या बड़ी बात निकलती है? कि इन सभी का कारण का जो कार्य कारण व्यवस्था है ना, उसका जवाबदारीपना जो है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल एंटिटी, एन omnipotent external entity. There is no such thing. You are yourself responsible for your own actions, for your own karmas, and we are ourselves own responsible for our actions and also shedding of the karmas. है ना? तो वही जो कहावत है, वह कहावत यहाँ सत्य हो जाती है। Whatever you sow, so shall you reap. ये जो कहा जाता है वो यही कर्म संबंध के बारे में घटित होता है, और इसका मुख्य कारण जीव तत्व ही है, अन्य कोई तत्व नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ आत्मा की स्वतंत्रता भी यहाँ आचार्य देव ने दिखा दी है इस कारिका के माध्यम से। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, गूढ़ है, अनेक अर्थों को धारण करने वाला है। इनको समझने का सौभाग्य अपने को यहाँ प्राप्त हो रहा है। आचार्य अकलंक स्वामी के हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं, ऐसे अन्य आचार्यों की भी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सुंदर तत्वों की पहचान के लिए इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे लिए लिखे गए हैं। अगर जैनी हो के हम ही इनको नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा भाई? कोई बाहर वाला आके पढ़ेगा और सिखाएगा क्या अपने को जैन धर्म? ये अपना आद्य कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी अमृत, इतना बड़ा अमृत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो जितना हो सके उतना रसास्वादन हमें उसको करना है। यही अपना कर्तव्य है इस गति के भीतर, इस जीवन के भीतर, है ना। तो देखिए इस प्रकार से अपन यहाँ पे 9वें श्लोक का यहाँ पे समापन होता है। अब इसके पश्चात में जो अगला विषय चलेगा वह आत्मा के संबंध में ही चलेगा, लेकिन अब इसके संबंध के भीतर कारण कार्य व्यवस्था के भीतर जो बातें आगे आने वाली है उसकी चर्चा चलेगी। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की चर्चा यहाँ समाप्त होती है ना। तो अपन यहीं इतना ही रखते हैं अभी, और इसके पश्चात में किसी को कोई शंका या फिर प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो 2 मिनट के लिए अपन कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हाँ जी, या Okay. Thank you. Yeah. Okay. Bhava and Jnana is the same thing. They are different. Jnana and Bhava. there are differences. Bhav means your internal disposition, that is called bhav. That disposition, internal bhav, is influenced by our belief structure, what we believe to be, और उससे अज्ञान भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझना। Okay. So they are different, but In some respect they are different. In परिणमन अपेक्षा they are different, पर ज्ञान अज्ञान जब रत्नत्रय की परिभाषा से समझोगे तो ज्ञान अज्ञान को, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अज्ञान कहा है, और उससे उत्पन्न होने वाले भाव है वो अज्ञान भाव है, ऐसा समझना। हाँ। Okay. Yeah, today was a very easy slope relatively. Good. And other analogy, I like it. When you are traveling, you take care of, take care of your